ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رومان بیٹا، پھر کیا خیال ہے؟ کب رکھی جائے تمہاری شادی کی تاریخ؟ اگلے دن وہ ڈیوٹی پر جانے والا تھا جب زکیہ نے اسے روک کر پوچھا تھا۔ ارے اماں، آپ کے کہنے پر اور خالہ کی طبیعت کی وجہ سے میں نے عائشہ سے منگنی تو کر لی تھی۔ آخر میری اپنی زندگی پر میرا اپنا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ کیوں آپ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عائشہ کے ذکر پر جھنجھلا گیا تھا اور ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ عذرا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور عائشہ ہر دوسرے دن اپنی ماں کو بس ایک ہی بات کہتی تھی، اماں جانے سے پہلے میری شادی ضرور کروا دینا۔ وہ تو مذاق میں اپنی اماں کو یہ بات کہتی تھی، مگر اس میں اتنی بھی عقل نہ تھی کہ اسے کون سی بات کب اور کس کے سامنے کرنی تھی۔ مگر عذرا اس کی باتیں سن کر اسے حوصلہ دیتی تھی کہ جب تمہاری منگنی کروا دی ہے تو شادی بھی ہو جائے گی، اس کے بغیر نہیں مرتی میں۔ رومان کے دل میں ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ عائشہ سے اس کی منگنی ہو چکی تھی جو صرف اس کی اماں کی خواہش اور ضد تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ رومان کا دل کہیں اور تھا، اور وہ تھا اس پاگل لڑکی کے نام سے منسلک جسے وہ راتوں کی محفلوں میں چھپا کر رکھتا تھا۔ صبح کی روشنی میں اس کے چہرے پر اضطراب چھایا ہوا تھا۔ اس کی اماں اس کے پیچھے پڑی تھی کہ اب شادی بھی کر لو، اور کتنی دیر کرو گے اس منگنی کو؟ وہ ہر روز اسے ایک ہی بات کہتی تھی اور وہ عائشہ کا ذکر سن کر تنگ آ گیا تھا۔ پہلے تو شاید وہ کسی طرح اپنے دل کو منا ہی لیتا کہ وہ اس عام سی دیہاتی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، مگر جب وہ ایک پاگل لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہوئی، عائشہ کا ذکر اس کو چبھنے لگا تھا۔ میرے بس میں ہو تو میں یہ منگنی ہی ختم کر دوں۔ وہ اپنے دھیان میں جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک پولیس آفیسر بھی تھا جب ان کی گاڑی سے ایک گاڑی کی ہلکی سی ٹکر ہوئی تھی اور اس کا ساتھی گاڑی سے نکل کر پیچھے سے آنے والی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا جو ایک لڑکی چلا رہی تھی۔ ارے او بی بی، دکھائی نہیں دیتا کیا؟ اندھی ہو؟ وہ امجد تھا جو ہر وقت رومان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اب اس لڑکی پر چلا رہا تھا۔ ارے ہٹو سامنے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے، جانے بھی دو اب۔ وہ لڑکی جھنجھلائی ہوئی تھی مگر امجد کسی صورت اس کو جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر پولیس والا تھا، اپنی وردی کا کچھ روک تو جھاڑ ہی سکتا تھا۔ نہ بی بی، پولیس والا ہوں میں، ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ امجد دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے امجد، واپس آؤ اور اندر آ کر بیٹھو۔ رومان نے گاڑی سے سر نکال کر اسے بلایا تھا۔ نہیں صاحب جی، میں اس لڑکی کو آج اندر کر کے پھر ہی اندر بیٹھوں گا، وہ بھی غصے سے بولا، اور رومان کا چہرہ دیکھ کر سحر گاڑی سے باہر آ گئی تھی۔ ہاں تو کر لو اندر، میں کون سا تم سے ڈرتی ہوں؟ وہ امجد کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور بار بار رومان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر شور مچا رہی تھی تاکہ رومان باہر آتا، اور ایسا ہی ہوا۔ چند لمحے گزرے تھے جب وہ گاڑی سے باہر آیا اور اس کے سامنے آ کر کہنے لگا، بی بی کیا تماشا لگا رکھا ہے، گاڑی ہٹاؤ یہاں سے۔ نہیں، میں نہیں ہٹاؤں گی، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ وہ رومان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی بات سن کر ایس پی رومان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اے لڑکی، تم پاگل ہو؟ صاحب جی لگتا ہے پاگل خانے سے بھاگ کر آئی ہے، جو اتنی جلدی میں ہے، کہیں تو اندر ڈال دوں؟ امجد فوراً آگے بڑھا تھا۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ڈالو اسے اندر۔ وہ غصے سے دھاڑا اور واپس جانے کے لیے موڑا ہی تھا جب سحر چلانے لگی تھی، اے خبردار، جو مجھے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی میں۔ ارے ہو ایس پی صاحب، کوشش کرنا کہ آج گھر جلدی آ جانا۔ زکیہ نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکلنے سے پہلے دوسری بار کہا تھا، جو اپنی وردی پہنے ابھی گھر سے نکلنے ہی والا تھا، مگر دوسری بار وہ خاموش نہیں رہا اور اماں سے پوچھ ہی لیا، کیوں اماں، ایسی کیا بات ہے کہ میں آج گھر جلدی آ جاؤں؟ اس نے اپنا یونیفارم شیشے کے سامنے دیکھتے ٹھیک کیا تھا۔ بیٹا، آج تمہاری خالہ نے ہمیں کھانے پر بلایا ہے۔ ارے اماں، میرے پاس بھلا کہاں اتنا ٹائم ہوتا ہے، آپ ابا کو لے کر خود چلی جائیں۔ بیٹا، تمہاری خالہ نے خاص کہا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ لازمی لے کر آؤں، اور تم ہو کہ بہانے بنا رہے ہو۔ زکیہ بیگم نے مصنوعی خفگی سے کہا تو رومان نے آنکھیں گول کر کے اپنی اماں کو دیکھا۔ اماں، ایسی بھی کیا خاص بات ہے
जो मेरा वहां जाना जरूरी है। आप चली जाना ना अब्बा के साथ। अब मैं तो छुट्टी लेकर नहीं आ सकता। मुझे भी अपने अफसरों को जवाब देना होता है कि आखिर ऐसा भी क्या काम आ गया जो मुझे काम के बीचों बीच घर जाना पड़ गया। और मैं उन्हें क्या बताता फिरूंगा कि मेरी खाला ने मेरी दावत की है इसीलिए मुझे जाना है। सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। इसलिए आप अब्बा को लेकर चली जाना। अच्छा, अब मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। वो तेजी से घर से निकल गया था। इससे पहले कि उसकी अम्मा मजीद उसे कुछ कहती, उसने घर से जाने में ही आफियत समझी थी। रुमान घर से तेज कदमों के साथ निकल गया। उसका चेहरा सपाट था, आंखों में मसरूफियत और माथे पर खफीफ सी झुंझुलाहट थी। ज़किया बेगम दरवाजे के करीब आकर खड़ी हो गई थी। शायद उनके दिल में ये उम्मीद थी कि वो पलटेगा और कुछ नरमी दिखाएगा, लेकिन वो तो घर से निकलते साथ ही एक मोड़ काटकर गली के कोने पर ही गायब हो गया। ज़किया बेगम उसे जाता देखकर आ भर कर अंदर पलट आई थी। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, जैसे दिल में कोई अंदेशा हो जिसे वो जबान पर ना लाना चाहती थी। वो तो चला गया था, अब क्या करें? उन्होंने शौहर साबिर हुसैन को आहिस्तगी से आवाज दी, जो लाउंज में ऐनक लगाए अखबार के पीछे छुपे थे। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उसे यूं मजबूर ना करो। वो फौजी है और उसके लिए उसका फर्ज सबसे पहले है। फिर वो भला इतनी सी बात के लिए छुट्टी क्यों लेकर आए कि उसे खाला के घर दावत पर जाना है? साबिर हुसैन ने लफ्ज खाला पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, मगर वो ज़किया की आंखों की नमी ना देख पाए थे। हर बात मामूली नहीं है साबिर, अगर वो ना गया तो शायद कुछ ऐसा हो जाए जिसकी तलाफी करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाए, ज़किया बेगम ने दबे अल्फाज में कहा था। साबिर हुसैन ने ऐनक उतार कर अखबार हटाई और उन्हें देखा। ज़किया, तुम अब भी समझती हो कि वो तुम्हारी बात मान जाएगा, जबकि वो पहले भी कितनी बार मना कर चुका है। मगर ज़किया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस सर झुकाकर अपनी बहन को याद करने लगी थी, जिन्होंने बहुत उम्मीद से उनसे वो बात की थी कि शायद वो रुमान को मना लेती। लेकिन रुमान छोटा बच्चा नहीं था जो अपनी माँ की हर बात मानता, मगर ज़किया को वो छोटा ही लगता था जो बचपन से उनकी हर बात मानता आया था, और उन्हें उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत जिद के बाद वो उनकी ये बात भी मान जाएगा। आखिर अजरा उनकी इकलौती बहन जो थी, फिर वो इनकार क्यों कर सकता था? रुमान पुलिस में था और नज्म व ज़ब्त उसकी रगों में खून की तरह दौड़ता था, लेकिन अब वो खुद भी महसूस करने लगा था कि उसका दिल किसी अनजाने बोझ के नीचे दबे जा रहा था। वो अक्सर माँ की बात टाल देता था, लेकिन आज की नरमी और जोर ने दिल में कुछ नए सवालात को जन्म दिया था। आखिर ऐसी भी क्या बात हो सकती है कि खाला ने इतना जोर दिया है? क्या कोई बीमार है? नहीं नहीं, खुदा खैर करे, कोई बीमार क्यों होगा? लो, फिर वही पुरानी बात होगी जिसके लिए वो मुझे अपने घर बुला रही हैं। मैं उनको कितनी बार तो मना कर चुका हूं कि मैं ये नहीं करना चाहता, उसके बावजूद भी न जाने क्यों वो मुझसे उम्मीद लगाए बैठी हैं। वो सोचता हुआ अपने काम में लग गया था, जबकि ज़किया एक बार फिर से सोचने लगी थी कि वो अजरा को कैसे जवाब देंगी। वो उनको बार बार मना करके भी थक गई थी, मगर अजरा उनकी बहन थी और बहन ने बड़े मान से उनको एक बार रुमान से बात करने को कहा था। आपा, बस एक बार और मेरे कहने पर रुमान से बात कर ले। अगर आप नहीं कर सकती तो उसको मेरे पास ले आए, मैं खुद उससे बात करूंगी। भला वो मेरी बात कैसे टाल सकता है? वो इसको मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ कर ही कबूल कर ले। अजरा ने एक आखिरी बार ज़किया से कहा था कि वो रुमान से बात करे, तभी तो वो रुमान को मना रही थी कि उनको रुमान समेत खाला के घर जाना था। रुमान ने जेब से थरथराता हुआ फोन निकाल कर देखा। अम्मा की 2 मिस्ड कॉल्स थी। उसने फोन वापस रखा और ऑफिस की खिड़की से बाहर देखने लगा। सामने वाले दरख्त पर एक परिंदा उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार नीचे गिर जाता था। रुमान ने बेसाख्ता सोचा कि शायद हर परिंदे के नसीब में उड़ान भरना नहीं लिखा होता। शायद कुछ को बीच रास्ते में ही गिर जाना पड़ता है, या शायद कुछ उस उड़ान के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते। अम्मा का चेहरा, उनकी इल्तिजा और खाला अजरा की आवाज एक हल्की सी सरगोशी की मानिंद उसके कानों में गूंजने लगी। मेरा बेटा मेरी बात जरूर मानेगा, मुझे उस पर यकीन है और ये मेरा यकीन कभी टूटने नहीं देगा। क्या वाकई खाला को उससे बहुत प्यार था, या ये भी एक जज्बाती हथकंडा था?
लेकिन जो भी था अब वो इनकार करते करते थक चुका था। मगर खाला का लहजा हर बार उसे कुछ और ही कह रहा था। वो भी तो एक माँ थी, और एक माँ जो अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ मांग रही हो तो क्या उसको झुठलाया जा सकता था? ज़किया भी रात भर ना सो सकी। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। उनको इस बात का तो यकीन था कि रोमान घर जल्दी नहीं आएगा, मगर फिर भी न जाने क्यों उसके ना आने पर उनके दिल को तकलीफ हुई थी। हर लम्हा अजरा की बातें उनके दिल को चुभती रही थी, और रोमान के इनकार का हर जुमला जैसे उनके दिल पर एक और बोझ डाल देता था। आखिर क्या बिगाड़ा है अजरा ने? क्यों ना हो जाए ये रिश्ता? अच्छी बड़ी लड़की तो है वो, फिर वो क्यों नहीं मान जाता इस रिश्ते के लिए? लेकिन क्या मेरा बेटा उसके साथ खुश भी रहेगा? मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा है। नहीं नहीं, वो मान जाएगा। वो अपनी बहन के लिए परेशान जरूर थी, मगर दिल का एक गोशा रोमान की खामोशी को भी समझता था कि वो इस रिश्ते से इनकार क्यों कर रहा था। माँ होने के नाते वो बेटे के चेहरे पर लिखी हर तहरीर पढ़ सकती थी, मगर उसको बता नहीं सकती थी, क्योंकि अगर एक तरफ उनका बेटा था तो दूसरी तरफ उनकी इकलौती बहन भी तो थी। रात भर वो परेशान रही, और फिर सुबह होते ही उन्होंने चाय बनाई, अपने लिए और रोमान के लिए। वो जानती थी कि वो दफ्तर जाने से पहले जरूर चाय पीता है। जब वो कमरे से निकला तो ज़किया ने नरमी से उसे रोका। बेटा बैठो, थोड़ी बात करनी है। रोमान ने माँ के चेहरे पर थकन और फिक्र की लकीरें देखी तो खामोशी से अपनी टोपी उतारता उनके पास बैठ गया। तुम मान क्यों नहीं जाते? अजरा ने एक बार फिर मुझसे कहा है कि मैं तुमसे बात करूं। वो चाहती है कि तुम उससे मिलो। तुम समझते क्यों नहीं हो? बेटी की बात है, शायद उसके दिल में कुछ ऐसा हो जो वो सिर्फ तुमसे कहना चाहती हो। रोमान ने चाय का घूंट भरा और नजरें नीची कर ली थी। अम्मा, आपको अब मैं क्या कहूं? वो बेशक बहुत अच्छी लड़की है, मैं भी उसे बचपन से जानता हूं, मगर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा जैसा आप सब चाहते हैं। ज़किया ने बेटे का हाथ थामा था। बस एक बार उससे मिल लो। मुझे तुम्हारा इनकार कबूल है, लेकिन एक आखिरी बार मेरे कहने पर उससे मिल लो। रोमान खामोश रहा था। माँ की आंखों में नमी थी, एक ऐसी नमी जिसे देखकर कोई भी बेटा इनकार नहीं कर सकता था। और आखिरकार वो अपनी खाला के घर जाने को तैयार हो ही गया। पहली बार उसको इस घर का माहौल बहुत अजीब सा लग रहा था। अजरा किचन से चाय लाई थी, मगर उनके हाथों में लर्जिश थी। वो एक जवान लड़की की माँ थी जो हर कीमत पर बेटी की बेहतरी चाहती थी। तभी वो उसके सामने आ खड़ी हुई थी। रोमान ने सर उठाया तो सामने आयशा खड़ी थी, अजरा की बेटी, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा था। वो सादा लिबास में मलबूस, नजरें झुकाए खामोशी से उसको देख रही थी। उसकी आंखों में भी रोमान के लिए पसंदीदगी थी। कमरे में एक गंभीर खामोशी छा गई। आखिरकार अजरा ने बोलना शुरू किया। रोमान बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करूं। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुम मेरी मजबूरी समझो कि मेरा तुम लोगों के सिवा और कौन है। मैं तो तुम्हारे अलावा किसी ऐसे लड़के को जानती भी नहीं जिसके हवाले अपनी बेटी कर दूं, और ना ही मेरे पास अब इतना वक्त बचा है कि मैं अपनी बेटी के लिए किसी और को ढूंढ सकूं। और तब रोमान ने पहली बार आयशा की आंखों में देखा था। वहां उसकी आंखों में उसे अपने लिए इश्क, एक हासिल करने की जिद थी, और एक दर्द भी था जो शायद पहले उसे कभी महसूस नहीं हुआ था। जैसे वो खुद भी नहीं जानती थी कि रोमान क्या जवाब देगा। वो तो सिर्फ माँ के कहने पर वहां बैठी थी। शायद उसके दिल में अभी भी उम्मीद थी कि रोमान मान जाएगा, और फिर रोमान के लब हिले। क्या आप ये चाहती हैं कि मैं ये रिश्ता कबूल कर लूं? उसकी बात पर आयशा ने शर्माकर सर झुका दिया, और अजरा ने कहा था, मैं बस ये चाहती हूं कि मेरी बेटी किसी महफूज हाथों में जाए। इससे बढ़कर मैं और कुछ नहीं चाहती। ये जुमला रोमान के दिल पर बिजली बनकर गिरा था। क्या वाकई वो दोनों औरतें जो आपस में बहनें थीं, उसे सिर्फ एक ख्वाहिश की तकमील का जरिया समझ रही थी? और क्या उसकी अपनी ख्वाहिशात, एहसासात उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते थे? वो अपनी जगह से उठा और कहने लगा, खाला मुझे कुछ वक्त दें, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगा। और अजरा ने सर हिला दिया, क्योंकि ये पहली बार था कि उसने साफ इनकार के बजाय कुछ और कहा था। अजरा के घर से वापस आकर रोमान सारा दिन चुप रहा, काम पर भी और घर पर भी। ज़किया ने भी उसे कुछ न कहा था,
लेकिन उनके दिल में अस्तराब था। रात के दूसरे पहर वो रोमान के कमरे में गईं तो देखा वो जाग रहा था, नजरें छत पर टिकाए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ। क्या सोच रहे हो बेटा? रोमान ने आहिस्ता से कहा। अम्मा, मैंने सोचा है ये रिश्ता सिर्फ दिखावा होगा, इसमें कोई मोहब्बत नहीं, कोई खुलूस नहीं होगा, तो फिर हमारा ये साथ कैसे चलेगा? ज़किया कुछ लम्हे खामोश रही और फिर बोली, लेकिन कुछ रिश्ते खुलूस से नहीं, कुर्बानी से भी तो चलाए जाते हैं, और फिर मोहब्बत का बीज भी वक्त के साथ खुद ही उग जाता है। रोमान ने आंखें मूंद ली थी। ज़किया सोच रही थी एक बार वो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाए तो सब ठीक हो ही जाएगा, क्योंकि मोहब्बत तो शादी के बाद हो ही जाती है। मगर उनकी भूल थी कि उनका बेटा शादी के बाद आयशा से मोहब्बत करेगा और उसे कबूल कर लेगा। रोमान ने जब सोने के लिए आंखें बंद की तो वो गोया एक ऐसे सफर की शुरुआत के लिए सोचने लगा था जिसकी मंजिल उसे खुद भी मालूम ना थी। सुबह जब सूरज की नरम किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वो बददस्तूर इसी कैफियत में था जैसे रात की बातें उसके अंदर कुछ ऐसा बदल गई हों जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता था। दिन चढ़ा तो ज़किया ने आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खटखटाया। बेटा, नाश्ता तैयार है। रोमान ने अपने चेहरे से बाजू हटाए और एक लम्हा नजर उठाकर अपनी मां को देखा और फिर आहिस्ता से बोला, अम्मा, खाला को फोन कर लीजिए, कह दीजिएगा कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। ज़किया का दिल जैसे एकदम हल्का हो गया। उन्होंने रोमान की पेशानी चूमी, जैसे उनके दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उन्होंने उसी वक्त अजरा को फोन करके ये खुशखबरी सुनाई थी और जल्द ही आयशा और रोमान की मंगनी की तारीख भी तय हो गई थी। आयशा रोमान की खालाजाद थी और उससे 6 साल छोटी थी। वो एक गांव में अपनी मां के साथ रहती थी, जबकि उसके बाप का साया तो उसके सर से उसी वक्त छिन गया था जब वो 4 साल की थी। उसके बाद से अजरा ने अकेले उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। तब से ही ज़किया की ख्वाहिश थी कि वो आयशा को अपनी बहू बनाती, मगर रोमान था कि वो इस हक में था ही नहीं। कहाँ वो एक बड़े से शहर का पढ़ा लिखा और मॉडर्न लड़का था, और कहाँ वो एक ऐसी देहाती लड़की से शादी करता जो ना सिर्फ उससे 6 साल छोटी थी बल्कि अपने बचपन से निकल ही नहीं पाई थी। बहुत बार अजरा ने और ज़किया ने रोमान से इस बारे में बात की थी कि वो आयशा को अपना लेता, वो उनके घर ही की तो बच्ची थी, मगर वो इनकार कर दिया करता। और जब अजरा बीमार रहने लगी, बहुत ज़्यादा बीमार, तो डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि उनके दोनों गुर्दे फेल हो चुके थे और उनके पास वक्त बहुत कम था। तभी अजरा ने रोमान को समझाया था कि वो उससे ज़्यादा भरोसा और भला किस पर कर सकती थी और अपनी बेटी को किसी और के हवाले कैसे कर सकती थी। इसीलिए वो ये बात सुनकर उनकी आखिरी ख्वाहिश समझते कबूल कर लेता। और रोमान ने जब अजरा की बीमारी के बारे में सुना तो वो भी मजबूरन इस रिश्ते के लिए राजी हो गया, मगर उसने दिल में अभी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश थी कि किसी तरह उसका रिश्ता आयशा के साथ ख़त्म हो जाता। वो लड़की से शुरू से ही नापसंद रही थी, जो कभी भी किसी भी मामले को संजीदगी से लेती ही नहीं थी। दोनों की मंगनी की तकरीब बहुत सादगी से हुई, क्योंकि रोमान एक SP ऑफिसर था और उसको छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती थी। वो तो ये मंगनी भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे भी नहीं रहा था। वो जो कुछ कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और खाला की खुशी के लिए कर रहा था, जबकि आयशा से उसको कोई गर्ज नहीं थी। रोमान ने बेदिली से मंगनी तो कर ली और आयशा ने आंखों में ख्वाब सजाकर उसके नाम की अंगूठी को अपने हाथ में सजा लिया। उसकी आंखों में खुशी थी, शुक्र था और एक अनजानी उम्मीद भी थी। वो यही समझ बैठी थी कि रोमान ने अगर मंगनी की थी तो शायद अब वक्त के साथ साथ वो उसे चाहने लगेगा। मगर मंगनी के बाद चंद दिन तक रोमान ने खुद को एक अजनबी सा मंगेतर बनाए रखा। वो नरम भी था मगर उससे बेजार भी। आयशा हर दिन नए अंदाज से उसके करीब आने की कोशिश करती, मगर हर बार उसके अंदाज में कुछ न कुछ ऐसा होता था जो रोमान के दिल को चुभ जाता था। कभी वो अपनी तोतली बातों में बचपना ले आती, कभी छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगती। रोमान अंदर ही अंदर झुंझला जाता मगर कुछ कहता नहीं था। वो कौन सा एक छोटी बच्ची थी जिसको वो हर रात बार बार समझाता। वो तो एक जवान लड़की थी, लेकिन उसका बचपना था कि ख़त्म हो नहीं सकता था। वो जब भी ये सोचता कि आयशा अब उसके साथ जुड़ चुकी थी तो उसके दिल में एक खलिश सी पैदा हुई
اور وہ سوچنے لگتا کہ اس کی جگہ اگر کوئی پڑھی لکھی اور عقل مند لڑکی ہوتی تو اس کی زندگی میں بھی سکون ہوتا، اس کے دل کو بھی خوشی ہوتی۔ زکیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ ان کے بیٹے کے دل میں اب تک خالی پن تھا۔ ایک رات جب رومان چپ چاپ لان میں بیٹھا تھا، وہ اس کے پاس آئیں اور اس کو سمجھانے لگی کہ اب تم نے عائشہ سے منگنی کر لی ہے، اب تمہیں اس کے ساتھ زندگی نبھانی ہے، وہ تو تم سے مانوس ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا تم اسے ایک موقع بھی نہیں دے سکتے؟ رومان نے سر دھا بھری تھی۔ اماں، اس لڑکی میں وہ بات ہے ہی نہیں جو میں اپنی زندگی کے ساتھی میں چاہتا تھا، وہ میری سوچ، میرے انداز، میرے دل سے کوسوں دور ہے۔ زکیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اور تم نے کب اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ جسے تم بچپنا کہہ رہے ہو، شاید وہ اس کا سلیقہ ہو جو تم نے دیکھا ہی نہیں۔ کچھ لوگ جذبات کو الفاظ میں نہیں ڈھالتے، وہ تو صرف عمل سے محبت کرتے ہیں۔ مگر رومان کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک ایسے بندھن میں بندھ گیا تھا جسے وہ خود دل سے تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ عائشہ اپنی دوستوں کو ہر روز وہ انگوٹھی دکھا دکھا کر خوش ہوتی رہتی تھی جو اسے رومان نے پہنائی تھی، مگر اس کی کسی بھی دوست نے ابھی تک رومان کو نہیں دیکھا تھا۔ تم تو ایسے خوش ہوتی پھر رہی ہو جیسے تمہاری شادی کسی شہزادے سے ہو رہی ہے، جیسے وہ سب سے انوکھا ہے۔ اس کی سب سہیلیاں اس کو طرح طرح کی باتیں کر کے چھیڑا کرتی اور وہ ان کی باتوں پر دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر شرمانے لگ جاتی۔ اس کی سہیلیوں کو یہی لگتا تھا کہ شاید عائشہ کی منگنی بھی کسی دیہاتی لڑکے سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ سب عائشہ کی عادت سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ وہ جوان تو ہو گئی تھی مگر اس کا بچپنا ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ رومان کی طرح اس کی سہیلیوں کو بھی اس سے یہ شکایت تھی کہ وہ کبھی کسی معاملے کو سنجیدگی سے لیتی ہی نہیں تھی۔ ہائے، وہ بھی تو دیکھو نا، کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو تم جیسی لڑکی مل رہی ہے، اس کے تو سارے خواب، سارے ارمان پورے ہو جائیں گے جس کے نصیب میں تم ہوگی۔ اس کی سہیلیاں اسے جی بھر کر ستاتی تھیں اور وہ رومان کے نام پر ہنستی رہتی تھی۔ جب ایک دن رومان اپنی اماں کے ساتھ عذرا کی خیریت دریافت کرنے آیا تو عائشہ شرماتی ہوئی اپنا دوپٹہ منہ میں لیے گھر سے باہر بھاگی تھی تاکہ اپنی سہیلیوں کو رومان دکھا سکتی، ان کو بتا سکتی کہ اس کی شادی واقعی کسی شہزادے سے ہو رہی تھی جو کسی سے کم نہیں تھا۔ شنیلا، اقصیٰ، سحر، سنو تو ادھر آؤ، میرے گھر دیکھو، مجھ سے ملنے کون آیا ہے۔ آج وہ بھاگتی ہوئی اس درخت کے پاس گئی تھی جہاں ایک بڑا سا جھولا تھا اور اس کی سب سہیلیاں اکثر وہاں ہی ہوتی تھیں۔ عائشہ کی بات سن کر سب کا دھیان اس کی طرف گیا۔ کون آ گیا بھائی تم سے ملنے جو تم اتنا چہچہاتی پھر رہی ہو؟ اقصیٰ نے پوچھا تھا۔ لو بھلا، اور کون ہوگا؟ اس کے خوابوں کا شہزادہ ہی ہوگا جو اس سے ملنے آیا ہوگا۔ شنیلا نے بھی اسے چھیڑا تھا۔ ہاں تو اور کیا، میرا رومان آیا ہے نا مجھ سے ملنے، خالہ کے ساتھ۔ وہ بھی دوپٹے کو ہاتھ پر لپیٹتے شرمائے جا رہی تھی اور ان تینوں لڑکیوں نے کن اکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ تو کیا ہمیں نہیں دکھاؤ گی اپنے خوابوں کا شہزادہ؟ سحر نے ایک بار پھر عائشہ کو چٹکی کاٹتے چھیڑا۔ ہاں ہاں آؤ نا، میں تم لوگوں کو اسی لیے تو بلانے آئی تھی تاکہ تم سب کو دکھا سکوں کہ میرا رومان سب سے انوکھا ہے، اس جیسا اونچے لمبے قد کا بھلا اور ہے کوئی ہمارے پورے گاؤں میں۔ عائشہ جلدی جلدی سے ان کو ہاتھ کا اشارہ کرتے اپنے پیچھے آنے کو کہہ رہی تھی اور گھر کی طرف تیزی سے چلنے لگی تھی جہاں پر رومان عذرا کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ اور جب ان کی تینوں کی نظر رومان پر پڑی تھی تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو واقعی بہت پرکشش تھا، اس کی پرسنالٹی جیسا کوئی بھی مرد انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی شرٹ کا سب سے اوپر والا بٹن کھلا تھا جہاں سے اس کے سینے کے بال نظر آ رہے تھے۔ آنکھوں میں ایک روب تھا اور آواز میں ایک ایسا جادو جو سننے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتا۔ تبھی تو سحر اس کی خوبصورتی سے اور اس کی شخصیت سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی اور پہلی بار اسے عائشہ سے حسد محسوس ہوا۔ عائشہ، کیا یہ سچ میں تمہارا منگیتر ہی ہے؟ کیا تمہاری منگنی اسی کے ساتھ ہوئی تھی؟ اس کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائشہ جیسی نادان اور کم عقل لڑکی کا منگیتر اس قدر خوبصورت اور پرکشش ہو سکتا تھا۔ اور تبھی سحر نے دل میں دعا مانگی تھی
کہ کاش وہ اس کا ہو جاتا۔ سحر اپنی سہیلیوں میں خوبصورت لڑکی تھی اور ان سب کی نسبت وہ پڑھی لکھی بھی تھی، کیونکہ وہ خود گاؤں میں نہیں رہتی تھی بلکہ شہر میں رہتی تھی اور گاؤں میں صرف اپنی نانی کے پاس رہنے آتی تھی، اور وہاں ہی اس کی دوستی عائشہ اور دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ سب اکثر عائشہ کو تنگ کیا کرتی تھی۔ ان کو تو یہی لگتا تھا کہ عائشہ کی منگنی جس لڑکے سے ہوئی تھی وہ ایک عام سا گاؤں کا سادہ سا لڑکا ہوگا، مگر جب انہوں نے رومان کو دیکھا تو وہ سب اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ مگر سحر تو پہلی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھی۔ تمہارا منگیتر شہر میں کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ وہ عائشہ سے رومان کے متعلق معلومات نکلوانے لگی۔ وہ پولیس میں ہے اور شہر کے سب سے ماڈرن علاقے میں رہتا ہے، عائشہ خوش ہوتی منہ پر ہاتھ رکھے بتا رہی تھی۔ سحر عائشہ سے رومان کے متعلق ساری معلومات لینے لگ گئی۔ وہ دل میں ٹھان چکی تھی کہ وہ اس لڑکے کو اپنا بنا کر رہے گی۔ اس نے ایک نظر دور کھڑے اونچے قد کے رومان کو دیکھا تھا جو دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے عذرا کے ہی پاس کھڑا تھا، اور دوسری نظر اس نے اپنے پاس کھڑی عائشہ کو دیکھا تھا جس نے سر میں تیل لگا کر کس کر چوٹی کر رکھی تھی۔ ان دونوں کا تو کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ پولیس میں؟ اوہ! سحر نے اپنے ہونٹوں کو گول کیا، مگر اس کی نظریں رومان پر ٹک گئی تھی۔ وہ اگلے ہی دن واپس شہر چلی گئی تھی۔ رومان ایک ایس پی تھا، اس کا نمبر لینا سحر کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور پھر جلد ہی اسے رومان سکندر کا نمبر بھی مل گیا جس پر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ایک میسج کیا تھا، ہیلو ہاؤ آر یو۔ وہ میسج بھیج کر بہت دیر تک موبائل تھامے بیٹھی رہی۔ 10 منٹ کے بعد رومان کا میسج آیا تھا اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پڑھا۔ آپ کون؟ سحر کے سوال کے جواب میں رومان نے بھی اس سے ایک سوال پوچھا تھا۔ میں تمہاری چاہنے والی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے میسج کیا۔ میں سمجھا نہیں، کون ہو تم؟ رومان کا جھٹ سے رپلائی آیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رومان کیا جواب دے گا، ناراض ہوگا یا مذاق اڑائے گا، مگر وہ اپنے جذبات کو دبائے نہیں رکھ پائی تھی۔ جب سے اس نے رومان کو دیکھا تھا اور جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ہینڈسم لڑکا عائشہ جیسی دیہاتی لڑکی کا منگیتر تھا، تب سے ہی اس کے دل میں دبی خاموش چاہت ایک چنگاری کی مانند شعلہ بن کر ابھرنے لگی تھی۔ اس نے جو کچھ لکھا تھا وہ بنا سوچے سمجھے لکھ دیا، میں تمہاری چاہنے والی ہوں۔ رومان کا رپلائی فوراً آیا، میں سمجھا نہیں، کون ہو تم؟ سحر کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ رومان اسے پہچان نہیں پائے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے بارے میں ابھی کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، بلکہ ابھی تو وہ صرف اس کو جاننا چاہتی تھی اور اسے سمجھنا چاہتی تھی۔ تم مجھے نہیں جانتے اور نہ ہی ابھی جان پاؤ گے، لیکن بس اتنا جان لو کہ میں تمہیں چاہتی ہوں اور تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ اس کے دل میں جو بھی تھا وہ اسے لفظوں کی صورت رومان کو سنا رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، دل کی دھڑکن پھر سے تیز ہونے لگی۔ وہ سوچنے لگی تھی کہ شاید اب رومان اس کے میسج کا جواب نہیں دے گا یا شاید اسے بلاک کر دے گا، مگر 10 منٹ بعد ایک نیا میسج آیا، میں تمہیں نہیں جانتا، اس لیے تب تک میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گا جب تک تم مجھے بتا نہیں دو گی کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ سحر نے گہرا سانس لیا۔ بات اب اس حد تک آ چکی تھی جہاں اسے پیچھے ہٹنا بزدلی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تو ہے کہ میں تمہاری چاہنے والی ہوں اور تمہیں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ رومان کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس کا جواب آیا، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، تم جانتی ہو نا کہ جو تم کر رہی ہو وہ ایک جرم ہے اور میں تمہیں اس کے بدلے جیل میں بھی ڈال سکتا ہوں۔ سحر کے دل پر جیسے کسی نے چوٹ ماری تھی، پر وہ ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ چلیں اچھا ہے، اس بہانے تم کم از کم میرے سامنے تو رہو گے نا۔ رومان نے فوراً جواب نہیں دیا تھا۔ وہ شاید حیران تھا یا شاید سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھی جو پولیس کا نام سن کر بھی نہیں ڈری تھی۔ دن گزرنے لگے، دونوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا رابطہ بڑھنے لگا۔ وہ ابھی تک رومان کے لیے ایک رانگ نمبر تھی، مگر وہ اس کی روٹین سے بہت اچھی طرح واقف ہو گئی تھی کہ وہ کس وقت ڈیوٹی پر ہوتا تھا، کب سوتا تھا، کب جاگتا تھا۔ وہ رومان کے بارے میں بہت کچھ جاننے لگی تھی اور رومان کو بھی شاید اس انجان لڑکی سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔
वैसे भी एक अनजान लड़की से बात करने से उसका क्या जाता था। इसीलिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, रोमान को भी उस लड़की की आदत होती जा रही थी, जिसका नंबर उसने पागल लड़की के नाम से अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। सहर दिन में उसे ज्यादा बात ना करती, पर रात को वो उससे हर रोज बात करती थी। उसकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें, रोमान की ड्यूटी, थकन, फर्ज, वो सब कुछ सुनती थी, अपने अंदर तक जज्ब करती थी और खामोशी से उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगी थी। एक दिन रोमान ने उससे पूछा था कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम हो जाता है, और तब सहर ने हंसकर कहा था, मोहब्बत तो जासूस बना देती है और मुझे तुम्हारे बारे में जानना, तुमसे बात करना पसंद है। और रोमान ने जवाब में सिर्फ इतना कहा था कि तुम तो वाकई अपनी चाहत में बहुत पागल हो। और ये पहला इशारा था कि वो नरम पड़ रहा था। उन दोनों को बात करते 1 महीना हो गया था जब रोमान ने ही उससे पूछा कि कभी मुझसे मिलने का नहीं सोचा। सहर का दिल जैसे रुक सा गया। ये उसकी भी तो ख्वाहिश थी, मगर अब वो लम्हा आया तो वो हिचकिचाने लगी थी। सोचा तो बहुत बार है, मगर मैं अभी तुमसे नहीं मिलूंगी। अभी मैं बस तुम्हें जानना चाहती हूं। सहर का ये जवाब पढ़कर रोमान कुछ लम्हे खामोश रहा, मगर जवाब नहीं आया। सहर ने फोन एक तरफ रखा और आंखें मूंद ली। दिल अजीब कश्मकश में था। एक तरफ ख्वाहिश थी तो दूसरी तरफ खौफ। अगर मैं उसके सामने आ गई और सब कुछ बदल गया, अगर मैं उसे पसंद ना आई, अगर ये खामोश ताल्लुक सिर्फ एक आम सा तजर्बा बन गया, तो मैं क्या करूंगी? मगर मैं उसे किसी सूरत उस देहाती लड़की का नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ रोमान मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। वो ये जानकर हैरान था कि किसी अनजान सी लड़की ने, जिसे वो जानता भी नहीं था, किस तरह उसके दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दी थी। वो बातें रात गए की गुफ्तगू, वो उस पागल लड़की का उसकी हर बात को तवज्जो से सुनना और समझना जैसे रोमान को सुकून देने लगा था। उसने आखिरकार जवाब दिया, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना तो पड़ेगा ना। सहर ने धड़कते दिल से मैसेज पढ़ा, मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, मगर अभी नहीं। वो मुख्तसर सा जवाब देकर मुस्कुरा दी थी। 1 महीना और गुजर गया था। उनकी बातें अब और ज्यादा गहरी होने लगी थी। सहर ने रोमान के अंदर के इंसान को जानना शुरू कर दिया था। वो एक पुलिस ऑफिसर था, मगर उसके अंदर एक ऐसा इंसान था जो अपनी ड्यूटी और जज्बात के बीच अक्सर उलझ जाता। और रोमान वो भी उस लड़की की सादगी, उसकी बेलोस मोहब्बत और खामोश मौजूदगी से मानूस होने लगा। वो हर रात उसका इंतजार करता था। ड्यूटी से लौटकर जब मोबाइल पर उस पागल लड़की का हेलो देखता तो सारी थकन जैसे कहीं गुम हो जाती। एक दिन सहर ने उससे पूछा था, आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? और तब उसे याद आया था कि उसकी तो आयशा से मंगनी हुई थी, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बल्कि उसके मुकाबले में तो अब इसके दिल में इस अनजान लड़की के लिए जज्बात पैदा होने लगे थे, जो उसको समझती थी, उसको जानती थी और सबसे बढ़कर उसको चाहती भी थी। रोमान ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, मेरे लिए रिश्ते तो आए थे, मगर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई अभी तक। मैं चाहता हूं मेरी हमसफर एक ऐसी लड़की हो जो मुझे समझती हो, मुझे जानती हो और हर मामले में मेरा साथ देने वाली, एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो। और तब सहर ने दिल ही दिल में कहा था कि अगर तुम देख पाते तो मेरी आंखों में वो सब कुछ होता जो तुम ढूंढते हो। लेकिन वो आयशा, वो तो किसी सूरत तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन इसने सिर्फ इतना कहा कि तुम सबसे अलग हो, और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हें चाहती हूं, और उस दिन से चाहती हूं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी, बारिश हो रही थी। सहर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी और फोन पर रोमान से बात कर रही थी। मेरा दिल चाह रहा है मैं इस बारिश में भीगूं। और रोमान ने हंसते हुए कहा था, तुम तो वाकई पागल हो, भला सर्दी की बारिश में कौन भीगता है? पागल तो मैं वैसे भी हूं, तुम्हारी चाहत में। वो हंसी थी। रोमान कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर आहिस्ता से बोला, कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे बहुत करीब हो और मुझे देखती हो, मगर मैं तुम्हें नहीं देख पाता।
सहर का दिल धड़कने लगा था, क्योंकि वो भी उसी इलाके में रहती थी जहां पर रोमान रहता था, और वो तो उसे रोज देखती थी। फिर न जाने कैसे वो खुद पर काबू करके बैठी थी कि उसके करीब जाने से खुद को रोक रही थी। रोमान की आवाज थोड़ी नरम हुई। पता नहीं मेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझे लगने लगा है जैसे तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हो, और मैं चाहता हूं तुम मेरे सामने आओ। सिर्फ एक बार मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। रोमान बेटा, फिर क्या ख्याल है, कब रखी जाए तुम्हारी शादी की तारीख? अगले दिन वो ड्यूटी पर जाने वाला था जब ज़किया ने उसे रोककर पूछा। अरे अम्मा, आपके कहने पर और खाला की तबीयत की वजह से मैंने आयशा से मंगनी तो कर ली थी। आखिर मेरी अपनी जिंदगी पर मेरा अपना भी कोई हक है या नहीं? क्यों आप हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हैं? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वो आयशा के जिक्र पर झुंझला गया था और नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल गया था। अजरा की हालत खराब होती जा रही थी और आयशा हर दूसरे दिन अपनी मां को बस एक ही बात कहती थी, अम्मा, जाने से पहले मेरी शादी जरूर करा देना। वो तो मजाक में अपनी मां को ये बात कहती थी, मगर उसमें इतनी अकल भी नहीं थी कि उसे कौन सी बात कब और किसके सामने करनी थी। मगर अजरा उसकी बातें सुनकर उसे हौसला देती थी कि जब तुम्हारी मंगनी करवा दी है तो शादी भी हो जाएगी, उसके बगैर नहीं मरती मैं। रोमान के दिल में एक अजीब सी परेशानी थी। आयशा से उसकी मंगनी हो चुकी थी, जो सिर्फ उसकी अम्मा की ख्वाहिश और जिद थी, मगर सच तो ये था कि रोमान का दिल कहीं और था, और वो था उस पागल लड़की के नाम से मुंसलिक, जिसे वो रातों की महफिलों में छुपा कर रखता था। सुबह की रोशनी में उसके चेहरे पर इज़्तिराब छाया हुआ था। उसकी अम्मा उसके पीछे पड़ी थी, अब शादी कर भी लो, और कितनी देर रखोगे इस मंगनी को? वो हर रोज उससे एक ही बात कहती थी, और वो आयशा का जिक्र सुनकर तंग आ गया था। पहले तो शायद वो किसी तरह अपने दिल को मना लेता कि वो इस आम सी देहाती लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता, मगर जब से वो एक पागल लड़की उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी, आयशा का जिक्र उसे चुभने लगा था। मेरे बस में हो तो मैं ये मंगनी ही खत्म कर दूं। वो अपने ही ध्यान में जा रहा था। उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर और भी था, जब उनकी गाड़ी से एक गाड़ी की हल्की सी टक्कर हुई और उसका साथी गाड़ी से निकलकर पीछे से आने वाली गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जो एक लड़की चला रही थी। अरे ओ बीबी, दिखाई नहीं देता क्या, अंधी हो? वो अमजद था, जो हर वक्त रोमान के साथ होता था। अब इस लड़की पर चिल्ला रहा था, अरे हटो सामने से, मुझे देर हो रही है, जाने भी दो अब। वो लड़की झुंझलाए हुए थी, मगर अमजद किसी सूरत उसको जाने देने के लिए तैयार नहीं था। आखिर पुलिस वाला था, अपनी वर्दी का कुछ रोक तो झाड़ ही सकता था ना। बीबी, पुलिस वाला हूं मैं, ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। अमजद दोनों हाथ कमर पर रखे उसके सामने खड़ा हो गया। क्या बात है अमजद, वापस आओ और अंदर आकर बैठो। रोमान ने गाड़ी से सर निकालकर उसे बुलाया। नहीं साहब जी, मैं इस लड़की को आज अंदर करके फिर ही बैठूंगा। वो भी गुस्से से बोला था, और रोमान का चेहरा देखकर सहर गाड़ी से बाहर आ गई थी। हाँ तो कर लो अंदर, मैं कौन सा तुमसे डरती हूं। वो अमजद के सामने खड़ी हो गई थी और बार बार रोमान की तरफ देख रही थी। वो जानबूझकर शोर मचा रही थी ताकि रोमान बाहर आता, और ऐसा ही हुआ। चंद लम्हे गुजरे थे जब वो गाड़ी से बाहर आया और उसके सामने आकर कहने लगा, बीबी क्या तमाशा लगा रखा है, गाड़ी हटाओ यहां से। नहीं, मैं नहीं हटाऊंगी, मुझे तुमसे शादी करनी है, अभी और इसी वक्त। वो रोमान की आंखों में देखकर बोली थी। उसकी बात सुनकर एसपी रोमान का दिमाग घूम गया था। ए लड़की, तुम पागल हो? साहब जी, लगता है पागल खाने से भाग कर आई है, जो इतनी जल्दी में है। कहते हैं तो अंदर डाल दूं। अमजद फौरन आगे बढ़ा था। कहने की क्या जरूरत है, डालो इसे अंदर। वो गुस्से से धाड़ा और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था जब सहर चिल्लाने लगी थी, अरे खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी मैं। अरे ओ एसपी साहब, मेरी बात तो सुने। उसने रोमान को बुलाया। आपने क्या कहा कि मैं पागल हूं? हाँ तो मैं हूं ना पागल, आपकी मोहब्बत में, आपकी चाहत में। और उसका लहजा सुनकर रोमान के कदम खुद ब खुद रुक गए थे। उसको वो आवाज जानी पहचानी लगी थी। पहले तो वो किसी उलझन में था जो सहर की आवाज को पहचान नहीं पाया था,
मगर जब उसने वही जुमले बोले जो वो कई बार इस पागल लड़की के मुंह से सुन चुका था, तो एकदम उसे अंदाजा हो गया कि पास खड़ी लड़की वो थी जिसकी तलाश उसे बहुत अरसे से थी। जब सहर को अंदाजा हो गया था कि रोमान उसे पहचान चुका है, तो वो दोनों बाजू अपने सीने पर बांधे गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई और कहने लगी थी, फिर डालो ना मुझे अंदर, लेकिन अंदर मुझे तुम्हारे साहब जी डालेंगे, और वो भी अपने इन खूबसूरत हाथों के साथ। वो मोहब्बत से रोमान की तरफ देख रही थी और वो आगे बढ़ा था, अपनी छड़ी उस पर टिकाए। उसे उसकी गाड़ी में बिठाता वो भी उसके बराबर आ बैठा। तुम जाओ, उसने अमजद को इशारा किया और खुद सहर के साथ गाड़ी में जा बैठा। तुम थी वो यार, क्या हो तुम? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो तुम थी, वो सहर को देखता हुआ कह रहा था। वो दोनों तो एक ही कॉलेज में पढ़े थे और शायद उसको कॉलेज के जमाने से ही वो पसंद करती थी। रोमान उसे जानता था, मगर वो अपनी जिंदगी में इस कदर मसरूफ हो गया था कि सहर को बिल्कुल भूल चुका था। लेकिन सहर शायद उसे नहीं भूली थी, तभी तो उसने उसे ढूंढ लिया था। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? रोमान ने उसकी तरफ घूम कर पूछा। तो और मैं क्यों इतने अरसे से तुम्हारे पीछे पागल हुई फिर रही हूं? वो मसनूई खफगी से कहने लगी थी। और तब रोमान के जहन में एक ख्याल आया था, ठीक है चलो हम अभी निकाह कर लेते हैं। और सहर तो पहले से तैयार बैठी थी। जब उन दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया तो रोमान का फोन बजा और वहां अम्मा का नाम जगमगा रहा था। जी अम्मा बोलें, क्या बात है? उसने झुंझुलाकर फोन कान से लगाया। बेटा जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी खाला की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो इसे कह रही थी। और रोमान जेब में फोन रखता सहर से माजरत करता दोबारा आने का वादा करके चला गया। सहर के चेहरे पर अब इत्मीनान था, उसने इस हैंडसम को हासिल कर ही लिया था। जब रोमान अम्मा को लेकर गांव पहुंचा तब तक अजरा की सांसें खत्म हो चुकी थी और आयशा उनके सिरहाने बैठी रो रही थी। मगर रोमान को आते देखते साथ वो उठ खड़ी हुई और शर्माते हुए अंदर भाग गई। आयशा को अभी भी अंदाजा नहीं हुआ था कि इस मौके पर उसे रोना था या शर्माना था, मगर वो पहली बार था जब रोमान को उस पर गुस्सा नहीं बल्कि उसकी मासूमियत पर तरस आया। तब उसने अम्मा को बता दिया कि वो निकाह कर चुका था अपनी पसंद से। ज़किया ने उसकी बात सुनकर उसे प्यार दिया और उस पर एक ऐसा राज खोला जिससे वो आज तक नावाकिफ था कि अजरा उसकी सगी खाला नहीं थी, बल्कि वो उसकी अम्मा के साथ बचपन से एक ही गांव में रहती थी और ज़किया ने उसको अपनी बहन बना लिया था, और वो भी सिर्फ अजरा की खुशी के लिए आयशा को अपनी बहू बनाना चाहती थी। मगर जब अजरा ही ना रही तो वो रोमान को कैसे मना सकती थी, इसलिए उन्होंने रोमान को कुछ नहीं कहा। जब आयशा को मालूम हुआ कि उसकी दोस्त सहर ने उसके मंगेतर को अपना शौहर बना लिया था तो वो बहुत रोई और उसे रोमान से नफरत हो गई, क्योंकि वो किसी ऐसे इंसान को भला अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकती थी जो कभी उसे मोहब्बत करता ही नहीं था, बल्कि उसके बजाय उसकी एक दोस्त को अपनी जिंदगी में उसने शामिल कर लिया था। आयशा की जिम्मेदारी अजरा के बाद ज़किया पर थी, इसीलिए उन्होंने उसकी शादी सादगी से गांव के ही एक सादा से लड़के से कर दी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि वो बच्ची कभी इस माहौल से निकल नहीं पाएगी। और उनका वही फैसला ठीक था, क्योंकि आयशा गांव में खुश थी। इन सब से फारिग होकर जब रोमान के मोबाइल पर एक नाम चमका था तो उसके चेहरे पर सुकून उतर आया था, क्योंकि वो पागल लड़की ही तो थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।